Good morning, students. Yesterday we discussed about the transport and communication chapter, and today we are going to continue this chapter. We discussed about various means of transportation in our last class. We discussed about the national highways, road transport, or the classification of roads on the basis of कैपेबिलिटी नेशनल हाईवेज हमने डिस्कस किया था स्टेट हाईवे वी डिस्कस्ड डिस्ट्रिक्ट रोड्स वी डिस्कस्ड रूरल रोड्स वी डिस्कस्ड today we are going to start next topic that is other roads and in other roads the most important roads are border roads. Border roads are the most important roads. And what do you understand by border roads? The roads laid along the international boundaries are called border roads. So who construct these roads? So border roads are constructed by Border Road Organization, BRO, that is Border Road Organization, BRO. Border roads are constructed and it was established in May 1960. It was established in May 1960. Border Road Organization was established in May 1960 with the objective to connect the inaccessible international boundaries. जो international boundaries हैं उनको access करने के लिए roads construct करने के लिए that are very important strategically जिनका बहुत ज्यादा क्या है importance है वो Border Road Organization कंस्ट्रक्ट करती है तो उन रोड्स को हम क्या बोलेंगे बॉर्डर रोड्स या इंटरनेशनल हाईवेज. Why these are known as international highways? Because these roads are laid along the international boundaries. Now, yes, now for accelerating economic development and strengthening defense preparedness through rapid and coordinated improvement of strategically important roads along the northern and northeastern boundary of the country. So in northern part, if I'm talking about northern part, India share its border. नॉर्दर्न के अंदर बात करते हैं तो नेपाल से शेयर करता है, चाइना से शेयर करता है, चाइना के अलावा आपका भूटान से शेयर करता है. फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद म्यांमार, बांग्लादेश. तो इन सभी बॉर्डर्स पे international boundaries है, border roads है, because these roads are at border, these are border roads, these roads are laid along the international boundary, these are also known as international roads. And border road organization construct these roads. So this agency is a premier multifaceted construction agency. प्रीमियर क्यों बोला गया? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ऑफ रोड्स जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, पहली चीज. सेकंड थिंग जो है मल्टीफेसिटेड क्यों है? बिकॉज हाई एल्टीट्यूड से लेके कोस्टल एरिया तक, थार डेजर्ट से लेके हिली एरियाज तक सभी जगह ये रोड्स बनाने में बिल्कुल एफिशिएंट एजेंसी है. दैट्स व्हाई इट इज अ प्रीमियर मल्टीफेसिटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी. So it has constructed roads. Why? The reason is it has constructed roads in high altitude mountainous terrain landscape joining. Here one example is given that border road that is constructed by BRO, and connecting this road is Chandigarh with Manali, that is located in Himachal Pradesh, and Leh, that is located in Ladakh. So let's talk about the altitude of this road. कि ये road mean sea level से कितनी ऊंची है? You can see this road is at an average altitude of 4,270 meters above the mean sea level. So this is the height of this road from mean sea level. Now, apart from the construction and maintenance of roads in strategically sensitive areas, because these areas are very important strategically. मान लीजिए कोई वॉर हो जाता है, इन केस ऑफ वॉर यहीं से इसी रोड से हमारे जो मिलिट्री ट्रक्स हैं, मिलिट्री है, आर्मी है, वो सारी इन्हीं रोड्स का क्या करती है? यूज करती है. सेंसिटिव एरियाज क्यों है? क्योंकि कुछ एक एरियाज हैं जो सेंसिटिव है, लैंडस्लाइड हो सकता है वहां, उन एरियाज के अंदर वो एरियाज इनएक्सेसिबल एरियाज हैं दैट आर सेंसिटिव.
The BRO also undertakes snow clearance in high altitude areas. So as we all know, as we all are familiar about the snowfall during the winter season in northern part of India. We all are familiar. These are due to various reasons. These are sometimes due to the western cyclonic disturbances, because these are like cyclones resulting in rainfall in northwestern part of India, that is in Rajasthan, Punjab, but it also result in snowfall in the northern part of the country. So the international highway, तो देखिए BRO स्नो को हटाने का भी काम करते हो, because that snow stops, that snow somewhat act as a barrier for the efficient movement of the traffic. तो ट्रैफिक रुक जाएगा तो उसको बिल्कुल रुके ना, इसके लिए स्नो क्लियरेंस का वर्क भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे कौन करता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. Now the international highways are meant to promote the harmonious relationship with the neighboring countries by providing effective links with India. एक और जो हमारा इसमें सिग्निफिकेंस है, सेकंड पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग कि इंटरनेशनल हाईवेज जो बनाए गए, इंटरनेशनल हाईवेज जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशनशिप. जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनको इंक्रीज करने के लिए, जो गुड रिलेशनशिप को इंक्रीज करने का, कैसे इंक्रीज होगा? जब हमारे बीच में उनके बीच में इफेक्टिव लिंक होगा. और लिंक कैसे होगा? जैसे मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ, जैसे मैं नेपाल की बात करता हूँ, नेपाल के अंदर एफिशिएंटली हम जा सकते हैं. तो ये लिंक कैसे होगा? ये लिंक आपका जो होगा, दैट थ्रू द मींस ऑफ रोड, थ्रू द मींस ऑफ रोड, बेस्ट क्वालिटी ऑफ रोड. Now, the do you know the world's longest highway tunnel? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो बनी है, दैट इज अटल टनल, जो कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर. लॉन्गेस्ट टनल. टनल कैसे बनती है? जैसे मान लीजिए कोई हिल है, हिल को काट के बिल्कुल जो अंदर से जो रास्ता चलता है, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में बैठे तो दिल्ली मेट्रो जो अंडरग्राउंड चलती है, जस्ट लाइक दैट. तो अटल टनल जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, एंड इट इज 9 किलोमीटर इन लेंथ, and it is also constructed, built by border road organization. So who construct tunnel? Atal tunnel is constructed by border road organization, and this tunnel connect, अब ये tunnel किसको connect करती है? You can see this tunnel connect Manali, that is in Himachal Pradesh, टू लाहौल स्पीति वैली जो है उसको कनेक्ट करती है पूरे ईयर के लिए. बिकॉज पहले क्या होता था, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस अटल टनल, क्या होता था कि ये जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाता था, स्नोफॉल की वजह से बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था. तो विंटर, ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये इनएसेसिबल एरिया था. बट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस अटल टनल बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नाउ मनाली टू लाहौल स्पीति वैली जो है ये ओपन है थ्रू आउट द ईयर. So earlier the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy snowfall. The tunnel is built with the ultra modern specifications in the Pir Pinjal range of Himalaya. Because मैंने आपको बोला था कि टनल जो है वो माउंटेन रेंज को कट करके अंदर बनाई गई है. तो पीर पिंजल रेंज, हिमालयास की बहुत सारी रेंज है, ग्रेटर हिमालयास, पीर पिंजल, ये सारी रेंजेस है हिमालयास की. तो ये टनल 3000 मीटर हाइट पे है मीन सी लेवल से. नाउ यू कैन सी खारदुंगला पास. पास मतलब हिल्स के बीच में जो क्रॉस करने की जगह होती है, दैट इज पास. सो खारदुंगला पास इन जम्मू कश्मीर, एंड हियर यू कैन सी वर्ल्ड्स हाईएस्ट motorable road. What do you understand by motorable road? Motorable roads are those roads जहां से ट्रैफिक चल सकता है, गाड़ियां चल सकती है, जिसपे वो मोटरेबल रोड है. Now you can see the strategic significance of the roads constructed by Border Road Organization. Here the picture figure 10.4, a bus from Lahore to Delhi at Wagah border. This road is constructed by Border Road Organization. Also figure 10.5, Amman Setu between Srinagar and Muzaffarabad, that is located in Pakistan.
Now, very important from the point of view of examination point of view से बहुत ज्यादा important है ये आपका भारतमाला प्रोजेक्ट जो है. So भारतमाला प्रोजेक्ट is proposed umbrella scheme. अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. तो ये स्कीम भारतमाला जो है वो बहुत सारी एरियाज को इस तरह से सिग्निफिकेंस रखती है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है. So you can see the proposed scenario of Bharatmala project, that development of state roads along coastal border areas, including connectivity of non-major ports. So there are several major ports, like Mumbai port is a major port, Kandla port is a major port. So बहुत सारे major port है, but there are minor port also, non-major ports also. So in Bharatmala project, these non-major ports are connected. ये कनेक्ट किए जाएंगे, ये बिल्कुल कनेक्ट होगा. इसका टारगेट जो रखा गया भारतमाला प्रोजेक्ट का, दैट इज 2022 जो अभी चल रहा है. 2022 तक ये कंप्लीट होना है, इसका कंप्लीशन का टारगेट है. और इसके अंदर देखिए स्टेट रोड्स बनाई जाएगी कोस्टल बॉर्डर एरिया में. जैसे राजस्थान का तो ठीक है, कोस्टल बॉर्डर नहीं है, बट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, West Bengal, these all states जिनके मैंने अभी नाम लिया, these all are sharing border with ocean. तो इन एरियाज के अंदर इनको कनेक्ट करना, नॉन मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड वन, बैकवर्ड एरियाज, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस कनेक्टिविटी प्रोग्राम. तो जितने भी एरियाज जो बैकवर्ड है, जो रिमोट एरियाज है, ऐसे एरियाज है जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, so Bharatmala project will connect these places, and also it will connect the religious and tourist places. Religious places, the places which are related to which are sacred to anyone religious. In if I'm talking about Bishnoi community, then Mukam is a religious place for them. तो मुकाम को एक अच्छी रूट से कनेक्ट करना, दैट इज द भारतमाला प्रोजेक्ट. तो ये इस प्रकार के रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा. एंड इट विल आल्सो कनेक्ट टूरिस्ट प्लेसेस आल्सो. तो टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर बहुत सारे एरिया लाइक चित्तौड़गढ़ हो गया, तो जितने भी एरियाज हैविंग टूरिस्ट एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, दिस विल कनेक्ट. 1 minute स्टूडेंट्स. ओके, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो इतने सिग्निफिकेंट रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस को कनेक्ट कर देगा. नेक्स्ट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, दैट इज सेतु भारतम परियोजना. सेतु क्या होता है? सेतु इज अ हिंदी वर्ड फॉर ब्रिज. ब्रिजेस के लिए हिंदी वर्ड दैट इज सेतु, दैट इज कनेक्टिंग टू प्लेसेस, कनेक्टिंग टू स्पॉट्स. सो सेतु भारतम परियोजना, it is the construction of about 1500 major bridges and 200 rail over bridges, rail under bridges. तो इस भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू जो अपने रेल पटरी जो है, रेल की जो ट्रैक्स है, तो वो कई बार क्या है, ट्रेन आती है, फाटक बंद हो जाता है, गेट बंद हो जाता है, तो इस वजह से बहुत लोगों को लेट होती है, टाइम कंजप्शन होता है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए ओवर ब्रिजेस जो है बनाएंगे. और 1500 मेजर ब्रिजेस भी रहेंगे, जैसे रिवर के ऊपर से हो सकते हैं, तो कैनाल के ऊपर से हो सकते हैं. तो इन ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन भी भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द भारतमाला प्रोजेक्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. Now the next means of transportation, that is rail transportation, which is included in the land transportation, which is a part of land transportation. So Indian Railway network is one of the longest in the world. If I'm talking about the length of the Indian Railway, then it is one of the longest in the world. Yes. Now it facilitates the movement of both freight. Freight means goods, freight means good, and passengers means movement of people. So railway regulate the movement of people as well as goods from one place to another, and goods movement is helps in the economic development of the country. And Mahatma Gandhi once said about the Indian Railway that Indian Railway brought people of diverse culture together to contribute to India's freedom struggle. Even today also, when we are going somewhere
थ्रू द मीन्स ऑफ रेलवे। आप देखते हैं क्योंकि रेलवे बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, आप देखते हैं बीच में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग डाइवर्स कल्चर के लोग बीच में आते हैं, हम अलग अलग कल्चर के थ्रू देखते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलती है हमें? रेलवे। क्योंकि बसेस जो है, बसेस तो देखिए यहाँ से सूरत की मान लीजिए बस है तो वो डायरेक्ट सूरत तक जाएगी, मीन्स बीकानेर की बीकानेर में फुल हो गई, फिर वहां तक गई। लेकिन रेलवे के अंदर आपको बहुत ज्यादा कल्चर देखने को मिलता है। व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सो इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। एट दैट टाइम इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। So, railway line was constructed from Bombay to Thane, and it covered that time distance of 34 किलोमीटर। तो पहली जो ट्रेन चली थी, पता होनी चाहिए पहली ट्रेन कब चली। तो पहली ट्रेन जो 1853 में चली थी, किसके बीच में चली? दैट इज फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, दोनों ही महाराष्ट्र में है। एंड हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड? सो इट कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। नाउ इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। तो देखिए इंडियन रेलवे प्राइवेट के अंडर में नहीं है। हु मैनेजिंग द इंडियन रेलवे, कौन सी एजेंसी के थ्रू है? तो इंडियन रेलवे इज अ पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द country. So let's talk about the total length of the Indian Railway. Then it is near about 66,030 kilometer, as it was calculated in 31st March 2015 का हमारे पास डेटा है। और at that time Indian Railway की जो लेंथ थी टोटल हमारी कंट्री में, that is 66,030 किलोमीटर। It's very large size, puts a lot of pressure on a centralized railway management system to, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंडियन रेलवे इज अ वेरी बिग नेटवर्क। तो पूरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे, रेलवे मैनेजमेंट पे एक तरह का प्रेशर भी रहता है इसको मैनेज करना। दस इन इंडिया द रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन। सो देयर आर 16 जोन। रेलवे को 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग हेड रेलवे जोन्स हैं और उनके अलग अलग हेडक्वार्टर है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारे राजस्थान की, इंडियन राजस्थान रेलवे की अगर बात करता हूँ, तो ये रेलवे जोन आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका जयपुर के अंदर है। वेयर द हेडक्वार्टर इज जयपुर। सो दीज आर द 16 रेलवे जोन्स। फर्स्ट वन दैट इज सेंट्रल, was headquarter is at the Mumbai. Next one that is eastern, that is Kolkata. Next one that is east central Hajipur, east coast Bhubaneswar, that is in Odisha, northern New Delhi, north central that is Allahabad UP, north eastern जो है आपका पड़ जाता है गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है मालेगांव गुवाहाटी। तो ये सारे के सारे 16 रेलवे जोन्स हैं। नाउ डू यू नो, देखिए गेज क्या है? गेज मेजरमेंट को बोलते हैं। गेज मींस मेजरमेंट। आप देखते हैं अभी तो नहीं है, हालांकि पहले जो टाइम पीरियड था तो ट्रेन की जो ट्रैक होती थी वो अलग अलग विड्थ की होती थी, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ। और ट्रेन का भी विड्थ जो होती थी, ट्रेन की भी जो चौड़ाई होती थी वो भी अलग अलग। कुछ ट्रेन बड़ी होती थी चौड़ाई के अंदर, कुछ एक ट्रेन थोड़ी सी नैरो होती थी। तो नैरो ट्रेन जो है वो नैरो ट्रैक पे चलती थी, बड़ी जो ट्रेन होती थी वो ब्रॉड गेज ट्रैक पे चलती थी। तो ये उसका जो है, इवन यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी सेम रहता है। यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी नैरो गेज है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। सो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ ट्रैक, ट्रैक की जो चौड़ाई है, विड्थ है, on that basis the railway having three types of categories are there. First one that is broad gauge. Gauge we already discussed, gauge is the measurement, gauge means measurement। अब broad है तो broad का मतलब क्या है? वाइड होगी, सबसे ज्यादा वाइड हो गई तभी ये क्या है? ब्रॉड है। तो फर्स्ट वन दैट इज ब्रॉड गेज। सो ब्रॉड गेज विच इज वाइड, वाइड फिजिकली। सो द डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन ब्रॉड गेज इज, ये देख लीजिए आप, इसका ट्रैक का जो ब्रॉड गेज जो ट्रैक है इसका विड्थ ये है 1.676 मीटर। नाउ इट्स टोटल लेंथ in our country this is 60,510 किलोमीटर। तो मैंने पहले ही बोला था कि इंडिया के अंदर तो ब्रॉड गेज ही है मेनली, यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी नैरो गेज है, मीटर गेज है। तो टोटल हमारे यहाँ पे लेंथ क्या है? 66,030 किलोमीटर, आउट ऑफ दिस 60,510 किलोमीटर is of broad gauge track. Okay, next one that is meter gauge। meter gauge जो है that is
somewhat less wider than the broad gauge, but नैरो गेज से ज्यादा वाइड है। तो यहाँ पे 1 मीटर, इसी के ऊपर इसका नाम लग गया मीटर गेज। 1 मीटर वाइड है, ट्रैक इज 1 मीटर वाइड एंड इट्स टोटल लेंथ इज 3880 किलोमीटर इन अवर कंट्री, दैट वाज कैलकुलेटेड ऑन मार्च 2016। नेक्स्ट वन दैट इज नैरो गेज, ये सबसे अब नैरो विड्थ जो है दैट इज 0.6762। यहाँ पे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.762 मीटर या 0.610 मीटर, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ है 2297 किलोमीटर। इट वाज आल्सो कैलकुलेटेड ड्यूरिंग मार्च 2016। और ये जनरली हिली एरियाज के अंदर, क्योंकि हिली एरियाज जो है वहां पे क्या प्रॉब्लम है, हिली एरियाज के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो हिली एरियाज जो है वहां पे ट्रैक्स जो है वो वाइडर जो है डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अनड्यूलेटिंग क्या है वहां की टोपोग्राफी है, तो वहां पे नैरो गेज होती है। नेक्स्ट वन, इंडियन रेलवे Indian Railway has launched extensive program to convert the meter and narrow gauge to broad gauge. That's why the length of the broad gauge is higher in India, because उन्होंने सारी मीटर गेज नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम चला दिया। इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीकानेर ऑल्सो, तो बीकानेर में 2 रेलवे स्टेशन जैसे है, वैसे तो लालगढ़ हो रही है, इसमें भी 2 तरह, जैसे आप बोलेंगे रेलवे स्टेशन छोड़ना है तो वो बोलेंगे छोटी लाइन या बड़ी लाइन। तो छोटी लाइन इन द सेंस व्हाट उसका मतलब क्या है टैक्सी वाले का, छोटी लाइन, तो छोटी लाइन का मतलब जो बोथरा कॉम्प्लेक्स के पास जो गेट खुलता था, वहां ओल्डर टाइम के अंदर, पुराने टाइम में वहां पे जो ट्रेन आती थी वो कौन सी थी, आपकी मीटर गेज नैरो गेज। जबकि जो हमारा हीरालाल मॉल के साइड जो साइड ओपन होता है रेलवे स्टेशन का, वहां पे ब्रॉड गेज होती थी। तो आज भी नाम वैसा का वैसा रह गया, बट अब सारी की सारी ही ब्रॉड गेज हो गई है, बिकॉज इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम टू कन्वर्ट दिस नैरो एंड मीटर इनटू ब्रॉड गेज। नाउ स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल। तो पहले एज वी ऑल नो दैट ट्रेन्स जो है वो कोल से चलती थी, कोल जो है एज एनर्जी यूज होता था उसमें। नाउ द इंजन्स आर डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन्स में देख लीजिए, मेट्रो जो है आपकी बिल्कुल इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। सो उन्होंने क्या कर दिया है, क्या इंप्रूव कर दिया है, इसके होने से क्या चेंज आ गया, दैट इज चेंज क्या आ गया आपका, कि पहली चीज स्पीड बढ़ गई है। स्पीड, क्योंकि कोल जो ट्रेन थी उसमें इतनी स्पीड नहीं थी जितनी डीजल, बिकॉज डीजल के अंदर पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक के अंदर भी स्पीड ठीक है। और सेकंड थिंग, हॉलेज जो कैपेसिटी है, हॉलेज कैपेसिटी जो है उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, इंक्रीज कर दिया। तो हॉलेज कैपेसिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है ट्रेन का, जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, वो भी क्या हो गया है आपका, इंक्रीज हो गया है। दैट इज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टीम इंजन्स बाय डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। Now the next, the replacement of steam engine run by coal has also improved the environment, because as we all know that burning of coal caused air pollution. एयर पॉल्यूशन होता है कोल के बर्न होने से, तो ये भी आपका क्या है, उसकी वजह से, स्टीम इंजन्स की वजह से जो है पॉल्यूशन ज्यादा होता था। लेकिन अब जो है डीजल इंजन की वजह से उसके कंपैरेटिवली कम हुआ, और इलेक्ट्रिक के अंदर पॉल्यूशन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स।